Hello students, today we are going to see a very important topic in chemical bonding chapter, that is resonance. First we will see what is the meaning of the term resonance. Have you seen the pair of tongs which your mother use in the regular kitchen while making rotis or chapatis? So this is the pair of tongs, and now I will show what is the meaning of the term resonance. If I tap this like this, it starts vibrating. It vibrates when we tap it fastly. It vibrates, and this vibrations is termed as what? Resonance. So this is the meaning of the term resonance. Now in chemistry, what is the meaning of the term resonance? It means what? Suppose I want to draw a structure of any compound. It is just not possible to draw the structure, because that structure do not gives all the physical and chemical properties of that particular compound. Example, if I am having a molecule like suppose I am having a molecule called methane, and if I write down the structure of methane like this. So this is the one of the way which I can write, but this is not the correct structure of methane. Why? Because it do not gives all its physical and chemical properties by writing down this structure. It doesn't mean that methane is going to show resonance. So this is the exact structure of the methane molecule, which is the molecule इस फॉर्म में रहता है. वैसे ही सेम बेंजीन रिंग C6H6. Benzene, its structure is what? Its structure is like this, and it has alternate single and double bond. But all the physical and chemical properties of the benzene molecule cannot be explained by writing down this single structure. So we need more than one structure, and the other structure is like this. Means the bond which is present, which was first present between this Ca and Cb. If I consider this is the Ca atom and carbon B atom, the double bond is between the Ca and Cb bond. Cb, this is Cc, Cd, Ce and Cf. Suppose, and now this now in the second resonating structures, the bond is between the Ca and Cf. So means when all the, so what will be the definition of resonance? When all, write it down, when all the physical and chemical properties of a molecule cannot be explained by writing any one of the form, it requires more than one form, that is termed as resonance. I had written the definition for you people on the board. See, I will explain you that definition. When all the physical and chemical properties of a molecule are not explained, it requires more than one structure, and this phenomena is termed as what? Resonance. And the actual structure is the resonance hybrid of these structure. जब हम किसी एक मॉलिक्यूल को सिर्फ एक स्ट्रक्चर लिखने से हम उसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स लगते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या बुलाते हैं? रेजोनेंस बुलाते हैं. एक एग्जांपल बताती हूँ. जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, बट this molecule also shows the resonance. So its resonating structures are what? It resonates like this. ऐसा हो जाएगा. अब इसमें देखो, ऑक्सीजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है. अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. और इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड कम बनाया है. हर ऑक्सीजन को दो बॉन्ड तो कंपल्सरीली बनाना ही पड़ता है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड कम बनाया है, इसीलिए हमने फॉर्मल चार्ज वाले में पढ़ा था. और एक और हो सकता है स्ट्रक्चर इसका, सी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. सो दिस इज द वे. तो इसके देखो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, 1, 2 और 3. ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं अलग अलग. वैसे ही सेम मैं बेंजीन रिंग के लिए भी बना सकती हूँ, और एक और मैं बनाती हूँ कार्बोनेट आयन के लिए, CO3 2-. इसमें क्या होगा देखिए, इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड्स है. हम सभी ऑक्सीजन को नाम देते हैं X, Y और Z. तो अभी यहाँ पर डबल बॉन्ड किसके बीच में है? OX ऑक्सीजन एंड OX एंड C के बीच में है, और इसके ऊपर नहीं है डबल बॉन्ड, इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पर भी माइनस चार्ज आएगा.
अब इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बन सकता है, जिसमें डबल बॉन्ड में यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, तो ये कैसा दिखेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये कौन सा ऑक्सीजन है, Z है, और ये वाला कौन सा है, Y, और ये कौन सा है, X। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है, तब हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख रहेंगे। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा, यही याद रखने का, कभी भी रेजोनेंस आया टॉपिक तो यही वाला स्ट्रक्चर बनाया करो, ये X, Y और Z। तो देखो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन OX ऑक्सीजन एंड OX एंड कार्बन, and whereas in the second structure there is a double bond between OZ and C, and in third structure there is a double bond between OY and C. So these are the three resonating structures of carbonate ion. This is the carbonate ion, CO3 2 minus is what, it is a carbonate ion. So आपको समझ में आ गया फिर रेजोनेंस क्या होता है, बट देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर राइटिंग डाउन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम वो भी पढ़ लेते हैं, फिर आपको और क्लियर होगा कि ये स्ट्रक्चर्स मैंने कैसे बनाए। ठीक है, डेफिनेशन आपने लिख ली, चलिए। So now the rules for writing down the resonating structures. First rule is what, that the contributing structure must have the same positions. अभी आपने देखा था कार्बोनेट आयन में, मैंने जब कार्बोनेट का आयन बनाया था तब ये ऐसा स्ट्रक्चर लिखा था, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर X, Y और Z अगर मैंने ऐसे लिखा है तो ये मेरे तीनों स्ट्रक्चर्स में फिक्स थी पोजीशन में, चेंज नहीं करती थी इसे, है ना। याद है कि आपको ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज नहीं करती थी, भले ही चार्जेस हम डबल बॉन्ड चेंज कर रहे हैं, वो तो हमें चेंज करना ही नहीं, तब भी वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा, तो ये ऐसा रहेगा। और एक और हमने बनाया था इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये कैसा था, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था, और ये ऑक्सीजन, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये X, Y और Z ऐसा बनाया था। तो पोजीशंस चेंज नहीं करनी है, एटम्स की कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव सेम पोजीशंस ऑफ एटम्स, एटम्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए। और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एज these structures they have same number of unpaired electrons, it is not going to change, that is this oxygen is having no charge, this oxygen is having one minus charge, and this is also having one minus charge, whereas the same will be here also. That means the charges are not going to change, number of unpaired electrons are not going to be changed in the contributing structures. These structures are also called as what, canonical forms. ये जो resonating structure होते हैं इन्हें हम क्या बुला सकते हैं, ये जो intermediate structures बनते हैं इन्हें क्या बुलाते हैं, canonical structures या फिर canonical forms। ठीक है, so the third point is what, the contributing structures must not differ much in the energy. अब हम पढ़ेंगे वो energy में कैसे differ नहीं करते हैं, but इनके बीच में energy difference ज्यादा नहीं होना चाहिए। Fourth point, that is the negative charge must be on the more negative atom, that is more electronegative atom, and the positive charge must be on the electropositive atom. And whereas if the charges are this minus charges है, जैसे same charges should not be closer, they जैसे adjacent atoms के ऊपर same type के charges लगा दिए, there will be a repulsion in that case, so they must be far apart so that they may have maximum stability and minimum repulsion। ठीक है, समझे यहाँ तक अभी क्या बताया मैंने। अभी हम एक एक करके कुछ और स्ट्रक्चर्स भी लेंगे और भी बताती हूँ मैं आपको कैसे। अब इसका ये हो गई ये कैनोनिकल फॉर्म्स। अगर मुझे इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा रहेगा, ये ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, इन सब के बीच में अब डॉटेड लाइन रहेगी, एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बुलाते हैं इसे, रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बुलाते हैं। ये एक्चुअल में कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, समझ में आया आपको मैंने कैसे बनाया फिर ये स्ट्रक्चर, और सबके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फिर। ठीक, समझा कैसे बनाया है स्ट्रक्चर ये। तो अब हम और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और क्लियर होगा। Now the next example is NO2 minus। NO2 minus के स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देखिए ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर अभी इसमें दो ही ऑक्सीजन आने वाले हैं, तो ये कैसे दिखेगा, नाइट्रोजन के पास में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, इसको नाम दे देती हूँ X, इसको नाम दे देती हूँ Y, सो दैट एक लोन पेयर रहेगा। तो अभी इसमें एक माइनस चार्ज है तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा, ये X, ये Y और एक लोन पेयर, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे।
ठीक है। तो जो ये जो एरो बना है डबल हेडेड एरो, दिस एरो इज फॉर द डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है कि हम मॉलिक्यूल को एक ऐसा नहीं बोल सकते कि ये मॉलिक्यूल ऐसा ही रहेगा, वो फास्ट चेंज हो रहा है, वो इस स्टेज से इस स्टेज में जा रहा है, इस स्टेज से इस स्टेज में जा रहा है, इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, इसीलिए हम उसे डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो अभी इसमें क्या हो रहा है, पहले ऑक्सीजन X और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड था, अभी ऑक्सीजन Y और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। जब हम बार बार डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं, कभी वो सिंगल बॉन्ड होता है, कभी वो डबल बॉन्ड होता है, तो जो बॉन्ड की लेंथ है वो भी चेंज हो रही होती है, यानी थोड़ी देर के लिए वो सिंगल बॉन्ड की लेंथ रहती होगी, फिर बाद में वो डबल बॉन्ड की लेंथ हो जाती होगी। मैंने आपको पढ़ाया था हाइब्रिडाइजेशन में कि बॉन्डिंग कैसे होती है ना। तो जब डबल बॉन्ड बनते हैं तो वो ओवरलैपिंग रीजन बढ़ जाता है, अगर ओवरलैपिंग रीजन बढ़ जाता है तो बॉन्ड की लेंथ कम हो जाती है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो ओवरलैपिंग रीजन कम रहता है, इसीलिए उसकी बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होती है। बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जब भी कोई एटम रेजोनेट, कोई भी मॉलिक्यूल जब रेजोनेट करता है या आयन जब रेजोनेट करता है, तब उसकी जो बॉन्ड की लेंथ होती है वो इंटरमीडिएट हो जाती है, ना ही वो सिंगल बॉन्ड के जितना बड़ा होता है, ना ही वो डबल बॉन्ड के जितना छोटा होता है। तो इसके जब हम, अगर मैंने इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया, तो इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर में जो रहेगा, ये नाइट्रोजन रहेगा, इसके पास एक लोन पेयर रहेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और दोनों के बीच में ऐसा एक बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ये एक्स नाम का और ये वाई नाम का, ठीक है। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, इट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दी सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो ऐसा होता है। ये मैंने आपको NO2 माइनस का बताया। हम और भी स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं बेटा, जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ SO3 मॉलिक्यूल। SO3 मॉलिक्यूल जो है, इसमें क्या होगा, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। SO3 मॉलिक्यूल, SO3 मॉलिक्यूल में सल्फर है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, एक एरो, याद है आपको, एरो वाले जो बॉन्ड रहते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बुलाते हैं। तो ये ऐसा रहेगा। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ड्रॉ करूं तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन के पास, और ये एक लोन पेयर भी, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसका डोनेट हो रहा है, मींस टोटल 8, मींस इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हो गया। इनके अगर मैं नाम दे दूं ABCD और C, तो अब देखो डबल बॉन्ड इसके बीच में, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगी तो कैसा दिखेगा, यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर एक, और अगर मैं एक और बनाऊं तो इसका कैसे दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है, ठीक है, समझ में आया। यानी क्या, A, B और C में हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे होते हैं। अब एक और टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, इसी में रेजोनेंस के अंडर ही आता है, वो है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी मीन्स व्हाट, इट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड द रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, इन दोनों के बीच के डिफरेंस। यानी क्या, अगर मैं इसका इन दोनों में से जो भी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उसका, यानी कि ये मान लेते हैं, इसका और इसका, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम क्या बुलाएंगे, रेजोनेंस एनर्जी बुलाएंगे, ठीक है। समझ में आया। रेजोनेंस एनर्जी का डिफरेंस मतलब क्या होता है, एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी मीन्स व्हाट, it is the difference between the actual bond energy minus energy of the most stable resonating structure, energy of most stable resonating structure, इसे हम क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बुलाते हैं, ठीक है। अगर इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी देख सकते हैं, जैसे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, देखो ये ऐसा मैंने ग्राफ बनाना है, तो एक साइड पर एनर्जी होगी, तो इसमें कैसे रहेगा, जैसे मैं ये NO2 का ही केस कंसीडर करती हूँ, तो एक एनर्जी है ये EA नाम की, दूसरी एनर्जी है EB नाम की, यानी ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बना दी, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसके एनर्जी का। और जो एक और एनर्जी है वो कौन सी है, इसकी भी तो एनर्जी होगी रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की, तो ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर की RH लिख देते हो। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस एनर्जी डिफरेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। समझ गया अभी आपको रेजोनेटिंग एनर्जी क्या होता है।
नाउ हमें ये रेजोनेटिंग, हम किसी भी मॉलिक्यूल का रेजोनेंस जो है वो एग्जैक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ऐसे आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसे बोलें कि मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है और अब ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लिया, तो ये ऐसा हम नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है। तो resonating structures have no real existence. First point, it does not mean that molecule exist for a certain fraction of time in one canonical form and for the other fraction of time for the another canonical form. तो ये ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये इतने देर के लिए ही रहेगा इस फॉर्म में, दूसरे फॉर्म के लिए दूसरे तो इतने देर के लिए रहेगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते। देयर इज नो टाइम लिमिट एंड नाउ देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स। उसमें कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है कि 60% ये है ए वाला फॉर्म है, 40% बी वाला फॉर्म है, ऐसा नहीं। दिस ऑल आर दी जस्ट दी इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो हियर वी एंड्स विद दी रेजोनेंस पार्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है, आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बॉन्ड पैरामीटर्स है, वो पढ़ाते हैं अभी आपको। तो आप इसकी कुछ होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। आप कुछ मॉलिक्यूल्स के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश करिए तो आपको और इजी जाएगा ये। तो जैसे एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको जिनके आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। जैसे एग्जांपल है एक NO3- सेकेंड SO2 मॉलिक्यूल। होमवर्क दे देती हूँ बेटा यहीं पर। होमवर्क क्या है आपको? NO3- फर्स्ट, सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड SO2 मॉलिक्यूल। ये 3 के आप स्ट्रक्चर्स बनाइए, आपको आ जाएंगे। अभी हमने जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे ही ये तीनों के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।